students of the BSc third year classes. Today's topic is related topic of the genetic engineering process, that is enzymology of the genetic engineering. So you know that very well about to the different enzymes which are working during to the completion for that to the genetic engineering process. So today's topic is related to the study of enzymes. Numbers of the enzymes are used into the this process, so that to the today's topic is enzymology of the genetic engineering. In the genetic engineering process, to the enzymes, first of all, you know that what is the enzymes? Enzyme is the biological catalyst which are secreted by to the tissue of the animals, and that's to enhance to the chemical reactions, and with the help that's complete to the reactions and the formation of to the products, so that in this process which named as the genetic engineering is also involved to the enzymes, and what is the kinds of the enzymes he use to in this process, so that I will start to the topics of the enzymes. First of all, you know that very well. First is to the lysozyme enzyme, which are cleaving enzyme, that is the use, and that's so. First of all, to the lysing enzyme, This enzyme is used for that to the extraction of the DNA from to the animal cell or the plant cell for the initiation of to the genetic engineering process, because the to takes to the DNA goes into the find to the segment of the desired genes after the receiving to the DNA from the particular tissues. So this enzyme is used for that to the dissolve to the cell wall or to the plasma membrane of the cell. So if the first enzyme is used for that to the lysozyme enzyme, you know that very well into the back-to-back 3 lectures which are concerned with the biotechnological process or the genetic engineering processes. So now today's only focus on basics for that to the specific and to the which participate into the important role in the genetic engineering process, that is the restriction endonuclease enzyme. So first is that to the know that lysozyme and dissolve the plasma membrane for that to the extraction of the DNA, extracted to DNA. This is the first enzyme. But in the process which are going to in the second one, second is to the cleaving enzyme. And today's topic is totally is concerned to the cleaving enzyme. There are the 3 types of the cleaving enzyme which are known that into the previous lectures, exonuclease, endonuclease, and to the restriction endonuclease. What is the main differences in between to the exonuclease, endonuclease, and the restriction endonuclease? You know that very well. That is the first is the for that to the exonuclease enzyme. First is exonuclease enzyme, exonuclease
nuclease, then endonuclease, and after that to the restriction endonuclease. Restriction endonuclease. You know that very well. That is the which are concerned with the nuclease. That is those are the enzymes used for that to the DNA and the RNA, particularly nucleic acid. So that is called to the enzyme which are absolutely which are used for that to the S in the last sentence, in the last word S, that is indicating to the enzyme. So that is the nuclease. That is which substances which are found into the nucleus. So that is the DNA and the RNA is a nucleic acid. So restriction endonuclease. So that which goes to along with the diagram. First is that in the with the diagrams for they are the 5' to 3 to 5', and which are working. Exonuclease enzyme is working on only one strands of the duplex, which means that to the either the 5' or the 3' segments of to the in the duplex, so that only that is cut it out. This is the cut out. This is the cut out to the here. Cut out to the segment of the 5 or the 3 here, which are working as where are the 5'. After that, for that to the endonuclease enzyme which work during to the any strands in any point. In the another words, we can say that about to the any strands of the duplex which are cutted out to the any point, so that to the work of to the endonuclease enzyme, which means that to the cutted out is this type of the enzymes. These are the cut out. But today's topic is particularly related to the restriction endonuclease, because these are the enzymes is used for that to the cleaving of to the DNA strands or DNA duplex, double helix in the small pieces. So today's topic is based on to the know that very well, restriction endonuclease enzyme. Restriction endonuclease enzyme is those enzyme which are also restriction endonuclease or restriction enzyme or endonuclease enzyme which that recognize specific site or the specific point in a DNA duplex, and which cut off or the cleave of the DNA duplex into the duplex at on the near of at, which means that the restriction enzyme is the enzyme which are recognized specific molecule of the DNA duplex, specific nucleotide sequences. Sorry for that. Recognize specific nucleotide sequences. Specific nucleotide sequences. Nucleotide sequence.
because you know that very well, that is the formation of to the DNA through the polynucleotide sequences which are joined to the, there are the three basic molecules up to the phosphoric acid or the phosphate nitrogenous bases and the pentose sugar, so that to the restriction endonuclease or the restriction enzyme or endonuclease enzyme that recognize to the specific nucleotide sequence up to the DNA and cleave to the DNA duplex at or the near specific site, specific or the specific sites or recognition site, recognized site, recognition or the recognition sequence or specific recognition or restriction sites, target sites, specific site, recognition sequences or restriction sites, restriction sites or target sites, in the clearly said that for that to the restriction endonuclease is the type of the special enzyme which are working at or the near where the specific segments of to the, there are the 4 or the 6 or the more palindromic sequences of to the nitrogenous base. So this enzyme were cut at or the near, these are the sequences or the points that is called to the recognition sequence or the restriction sites or the target sites, where, which means that to the these kinds of this, like this is the where the 6 type Z T T A C and where C A T T Z. This is the sequence for that which found at or near the DNA strands. These near are add to the cut of the DNA segments. तो आज के चैप्टर में जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के में एंजाइमोलॉजी से जुड़ा है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंतर्गत रिकॉग्निशन सीक्वेंस और रेस्ट्रिक्शन साइट और टारगेट साइट की। तो मैंने कहा कि ये जो है डीएनए सीक्वेंस को वहाँ पे काटते हैं जहाँ पे इस प्रकार के रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जो कि मैंने कहा कि 6 नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस हो जो कि पैलिंड्रोम में हो। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है ग्रीक वर्ड में कि जो पैलिंड्रोम होता है टू रन बैक अगेन, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप जान लें। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड में टू रन बैक अगेन, टू रन बैक अगेन, टू रन बैक अगेन। इसका क्या मतलब है? अब आप देखें यहाँ पे मैंने जैसा एग्जांपल है, यू आर टेक्स्ट टू द एग्जांपल फॉर दैट टू द अंडरस्टैंडिंग अबाउट टू द restriction sites or the recognition sites where are the restriction endonucleases which are worked out. So here to the 6 GTTAAC, G, or as you can say that about to the there are the segments or the chains, इसको ऐसे आप कर सकते हैं ZAATT, दैट इज अ चेंज, मतलब अपोजिट सीक्वेंस में हो यहां पर इस प्रकार से आप देखें। तो अब वहां पे ये इसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। देखिए यहां पे जस्ट क्या लिखा है ग्रीक वर्ड में, टू रन बैक अगेन, टू रन बैक अगेन।
एक GAATTC अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे 6 नाइट्रोजनस बेसिस सीक्वेंस को लिया है तो उस पे आप जानते हैं 1 प्यूरिन एंड 1 pyrimidine इज ज्वाइन टुगेदर फॉर्म टू द डबल डुप्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द DNA। तो यहाँ से देखिए इसी पॉइंट को G हमेशा C से, A हमेशा A से, मतलब एडेनिन टू थायमिन, ग्वानिन टू साइटोसिन ज्वाइन करके इस प्रकार से लगातार 6 जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है वहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो DNA सीक्वेंस है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहाँ पर ये 6 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होते हैं पाए जाते हैं, उसी के पास या उसी पर जो है इस DNA सीक्वेंस को क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि रिकॉग्नाइज करने के लिए आधार पे इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट क्यों बोलते हैं हम उसको आपको बताते हैं, पहले इसको पैलिंड्रोम। तो यहाँ पे साइंस की भाषा में इन द साइंटिफिक वर्ड दैट इज कॉल्ड टू द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस व्हिच मींस दैट टू द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस व्हिच आर सिचुएटेड एट द जॉइंट टू द इनटू द जस्ट रिवर्स nitrogenous base into the 2 complementary strands of the DNA molecule arranged as a mirror image, which are the complementary strand of the DNA, and that is the situated to the just like to the mirror image, and which guanine to cytosine, and cytosine and guanine, adenine, thymine, adenine, thymine, thymine, adenine, thymine, adenine, cytosine and guanine. So that this is the complementary strand, and here to the there are the establishment of to the these nitrogenous base is just like to the mirror image, so that in this at this point that is the restriction enzyme is working, and that's to the cleave to the DNA duplex, so that it is called to the restriction nuclease. And those are which of the parts of the DNA segment where are the cleave to the strands of the by the restriction endonuclease, that is called to the recognition sequence or the restriction site or the target. तो कहने का मतलब है कि चूंकि ये रिकॉग्नाइज कर रहा है 6 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस को, इसलिए इसको बोला जाता है टारगेट साइट। इसलिए बोला जाता है कि टारगेट यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है यहाँ पे इसको टारगेट कर रहा है, मतलब इसी अपने विशेष जो मुख्य बिंदु होता है जहाँ पे इसको पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यहाँ पे 6 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है, वो वहाँ पे इसको कट करता है। रिस्ट्रिक्शन साइट क्यों बोलते हैं उसको हम बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू द W arbor विच आर डिस्कवर्ड टू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम पहले समझ लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन साइट या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोला गया। इन द लास्ट चैप्टर वी आर आल्सो मेंशन दैट अबाउट टू द व्हाट इज द बेस फॉर दैट टू द विच गिवन टू द नेम एज एन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर, because this is the restricts which are have to the restriction site where are the cleave to the DNA duplex. First of all, W arbor in the 1962 which are saw that to the restriction enzyme in the bacterial cell, or the bacteria in this restriction enzyme are found into the some of the bacteria which present in the bacterial cell. अब यहाँ पे हम समझाते हैं कैसे वर्किंग होती है। जैसा मैंने बताया कि पर्टिकुलरली जो एस्क्रिचिया कोलाई होती है, वैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी बैक्टीरिया को लेकर किया है तो वो ई कोलाई बैक्टीरिया है, एस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, और उसमें जो है प्लाज्मिड भी पाया जाता है। और ये जो है रिस्ट्रिक्शन साइट की जो थ्योरी आई है, या रिस्ट्रिक्शन साइट की जो अभी 350 प्लस अभी लगातार सर्च बढ़ता चला जा रहा है, तो 350 प्लस जो रिस्ट्रिक्शन साइट की जो खोज हुई है वो इसी के माध्यम से हुआ है। और तो यहाँ पर हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो W arbor थे पहली बार देखे उन्होंने, और मिशेल्सन एंड युवान जो थे पहली बार इन्होंने इसको जो एक्सट्रैक्ट करके बताया कि बैक्टीरिया जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है इसमें जो है एंजाइम पाया जाता है, और ये एंजाइम इसलिए होता है कि ये जो फेज वायरस होता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज होता है, दैट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरियोफेज, वेयर आर द
which are present during to the surface of to the E. coli, that is the it's one to that introduced to their genetic material for that to the replication process are the given to the infection of the bacteria, which command to the all the metabolic machinery for that to the their copies. So bacteria which secrete to the this enzyme for the cleave of the viral genome. तो वायरस के जो कोड का जो डीएनए होता है या जीनोम होता है उसको यीस्ट प्रोटीन के माध्यम से क्लीव कर दिया जाता है, जिससे कि जो पूरा का पूरा जो मशीनरी है, पूरी जो उसकी व्यवस्था है उस पे ये क्या करे, कैप्चर ना करे, जिससे कि अपनी क्षमता अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अपने मटेरियल को या अपने रेप्लिकेशन को प्रोसेस को ये करने लगता है। तो इसलिए बैक्टीरिया के माध्यम से ये निकलता है और यहाँ पे इन्फेक्शन ना फैलाए, इसके लिए दैट इज द डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज दैट इन्वेड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल सो दैट दे रिस्ट्रिक्ट the ability of the phase DNA for that to the transcription and to the translation processes. तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेसेस जो होता है बैक्टीरियोफेज का, ये एंजाइम जो कि बैक्टीरिया से निकलता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, एज यू नो दैट वेरी वेल, ट्रांसक्रिप्शन फॉर दैट टू द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए एंड देन द आरएनए विच फॉर्म to the special protein after the process up to the translation, so that to the bacteria is also perform this process for that to the stopping this mechanism that enzyme is releasing during to the when the time of the viral which introduce inside the bacteria or invade inside the bacterial cell. So these are the cleaving to the DNA, and that is the stop to the all the mechanism of the bacteria which command which command to the all the metabolic machinery. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि वहाँ से उस समय इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई डब्ल्यू आर्बर, जैसा मैंने बताया था, डब्ल्यू आर्बर के द्वारा, और यहाँ से ये मेसेल्सन और युवान में सबसे पहले ये तो इन्होंने देखा था, युवान ने उसको जो है एक्सट्रैक्ट करके पहली बार जो है उसको निकाला, मेसेल्सन एंड युवान का नाम आता है सबसे पहले। तो ये जो एंजाइम है, जैसा मैंने कहा कि वायरल जो डीएनए है, जिसको जो जबकि हमने कहा कि बैक्टीरियोफेज की बात की, बैक्टीरियोफेज जैसा आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं वो फेज ऑफ बैक्टीरिया का वायरस होता है, बैक्टीरिया पे ही अटैक करके, तो इसीलिए बोला जाता है कि बैक्टीरिया सभी के लिए इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो यहाँ पे फेज ऑफ द बैक्टीरिया, वायरस ऑफ द बैक्टीरिया, सो दैट टू द दिस व्हेन द इंट्रोड्यूस्ड, तो उसी समय ये जो है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये इस एंजाइम को सिक्रीट करता है और ये वायरल डीएनए को क्या कर देता है, क्लीव कर देगा और क्लीव करने के से क्या होगा कि पूरा का पूरा ये जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, और जिसके आधार पे जो उस पे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के अंतर्गत इन्फेक्शन कोई नहीं होगा, और या यूँ कह सकते हैं इन द अदर वर्ड्स, द बैक्टीरिया विच आर नॉट गिवन टू द टाइम फॉर दैट to the virus to goes to the form to the copies after the commanding, after the receiving to the metabolic machinery for that to the transcription and the translation processes, so that to the this is the very important enzyme. So this concept, this after the discovery of this restriction enzyme, that's into the vitro condition to the there are the 350 plus restriction enzyme which are evolved by the scientists. So this is the basic things for that to the for the genetic engineering processes. तो इस आधार पे आप ये कह सकते हैं, तो वही जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस पॉइंट पे या जिस पॉइंट के समीप नज़दीक में ये कट करता है, इसके आधार पे इसको रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। और यही जो थियरी कि वो वायरस के जीनोम को, डीएनए को क्या करेगा, क्लीव कर देगा, रोक देगा, तो इसके आधार पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इसी के आधार पे इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एंजाइम
का क्या रोल है। अब हम ये कह सकते हैं, अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है उसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब तीनों करके एक एक करके हम बताते हैं आपको। पहले फर्स्ट समझ लेते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट जो टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन साइट जो होता है, ये दीज क्लीव ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। ये जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, जैसा आप कह सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को करता है, और वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एट एन अपरेंटली रैंडम साइट, रैंडमली तरीके से ये कट करता है। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो टाइप है फर्स्ट, वो रैंडमली तरीके से किसी एक जो है डीएनए सीक्वेंस को, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसको कट करता है, ठीक है। जबकि साइंटिस्ट जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी की आवश्यकता इसमें नहीं होती। मैग्नीशियम की आवश्यकता, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये जो है थोड़ा वर्क करते हैं। हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या वर्क करते हैं यहाँ पर। तो मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जो ये सेकेंड टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, ये क्या करता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या इस सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन ऑफ द टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज मोस्टली यूज्ड। यहाँ पे एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने कहा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता। मैग्नीशियम के उपस्थिति में ये जो है दोनों स्टैंड को, ये देखिए यहाँ पे मैंने जो स्टैंड बनाया है, इस दोनों स्टैंड को क्या करते हैं, एक साथ में किसी अलग अलग पॉइंट से या एक समान बिंदु पर, पॉइंट पर, नाइट्रोजनस बेस के पॉइंट पे दोनों काट देते हैं। तो इस आधार पे हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शन 2 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब एक टाइप और भी है जिस टाइप को थर्ड बोलते हैं। टाइप थर्ड माना जाता है कि रिस्ट्रिक्शन जो रैंडमली, जो मैंने पहला फर्स्ट टाइप बोला था, फर्स्ट टाइप और जो सेकंड टाइप है उसका इंटरमीडिएट माना जाता है, क्योंकि ये जो है ये मैग्नीशियम और एटीपी की प्रेजेंस में वर्क करता है, और ये जो कह सकते हैं कि डिफाइंड साइट, वेल डिफाइंड साइट पे ही इसको कट करता है। अब हम देख लेते हैं, अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये डुप्लेक्स, डबल हेलिक्स या डुप्लेक्स ऑफ द डीएनए को कैसे काटता है, इसकी वर्किंग क्या है, व्हाट इज द फंक्शनिंग और द मोड ऑफ एक्शन ऑफ टू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गो नाउ टू द डायग्राम एंड दैट टू द एक्सप्लेन इट। अब हम देख लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग एट द मोड ऑफ एक्शन जो मैंने बोला वो कैसे होता है। तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, एक स्टैंड बनाते हैं हम लोग। अब इसको एक्सप्लेनेट करना है तो इसको अच्छे से बना लेते हैं स्टैंड को, और उसको दिखाते हैं, जिसमें ये हमेशा हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार से ये यहाँ पर इस सीक्वेंस में 3' to 5' एंड 3' to 5' to 3' एंड 3' to 5', ये इसका स्ट्रैंड है, डुप्लेक्स है डीएनए का। और यहाँ से ये हम बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखें 2, 3, 4, 5, 6 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस लेते हैं और ये आगे बढ़ा देते हैं इसका और भी जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस हैं। अब यहाँ से जैसा भी मैंने बोला कि यहाँ पे Z, A, T, T और C है, उसी प्रकार से यहाँ पे C, T, T, A और G है। देखिए यही हमने कहा था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इसका वर्किंग ये हमेशा
at a site or the near the site of the target, जो टारगेट साइट होती है जहां पे ये नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस पाए जाते हैं वहीं पे इसका वर्क होगा। अब वर्क जो होगा वो सीक्वेंस का होगा वो हमेशा देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ये डुप्लेक्स है, ये दोनों को, इस स्ट्रैंड को, दोनों स्ट्रैंड को उसी पॉइंट पे, जबकि मैंने हमेशा आपको ध्यान दिया आप दीजिए कि हमेशा कहा है कि इसमें डुप्लेक्स कटता है, मतलब दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड को ही काटता है, और ये विशेष उस पर उसी जहां से काटेगा वो एक स्पेसिफिक साइट होगी, टारगेट साइट भी बोलते हैं। मैंने कहा ये पैलिंड्रोमिक वहाँ पे सीक्वेंस होता है, अपोजिट सीक्वेंस में अपोजिट डायरेक्शन में जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जस्ट वांट टू दैट, दिस इज द वेरी एसेंशियल एंड द मैंडेटरी फॉर दैट टू द एक्शन or the functioning up to the restriction enzyme, or the type of the restriction enzyme which cut or the cleave up to the duplex of the DNA molecule. So always to remind it to the restriction enzyme which are working when that to the restriction sites, target sites, or the sequential, just like to the mirror image of the nitrogenous base is the present on the that sites. तो यहाँ पर वहाँ पे मिरर इमेज होना चाहिए। अब ये यहाँ पे बात ये आती है कि इसका कट कैसे होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब मैंने उस दिन आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये कट दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहला कट जो होता है, मैंने कहा था आपको, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंतर्गत दो कट होते हैं, दो प्रकार से। पहला एक बोला जाता है स्टैगर्ड कट, तो और दूसरा, अब इसी को स्टैगर्ड जब कट बोलते हैं तो उसको स्टिकी इंड या फिर कोहेसिव इंड बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टिकी इंड या कोहेसिव इंड भी बोलते हैं, और जो कट होता है, टाइप होता है उसका, वो स्टैगर्ड कट बोलते हैं। और दूसरा होता है ब्लंट और फ्लस इंड बोलते हैं। तो दो तरीके हैं कट करने के, और मैंने जैसे कहा कि विच आर हैव टू द 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स where are the site is the present to the palindromic sequence up to the nitrogenous base, that is the guanine to cytosine, 1 purine and 1 pyrimidine which are joined with the hydrogen bonds. So that first of all your takes to the functioning of to the sticky end like cohesive staggered in staggered cut, स्टैगर्ड कट को लेते हैं। और स्टैगर्ड कट में क्या होगा, स्टैगर्ड कट में हमेशा दो डुप्लेक्स है, जो उसका स्ट्रैंड है, दोनों बोथ आर द स्ट्रैंड्स और द कट बाय टू द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑन द स्पेसिफिक साइट। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड पे ये एक एक नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस को इस प्रकार से कट करते हैं कि जो वो एक ही बिंदु पे ना होके अलग अलग बिंदु पे होता है। तो यहाँ पे हम सामान्यतः आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू द क्लीविंग अप टू द बोथ स्टैंड एट द पॉइंट ऑफ टू द कट टू द क्लीव टू द वन नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस, जस्ट लाइक इन टू द विच हैव टू द स्टिकी इंड आर टू द कोहेसिव इंड टाइप ऑफ द कट स्टैगर्ड कट। तो स्टैगर्ड कट है ये। अब इसको कट कैसे करेंगे, देखिए दोनों स्टैंड है, 6 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस है, मिरर इमेज की तरह है, कप्लीमेंट्री स्टैंड है, हमेशा आप जानते हैं कप्लीमेंट्री टू ईच अदर होता है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होते हैं। अब ध्यान दीजिए कट कैसे करेंगे। एक देखिए कट, पहला फर्स्ट एरो फॉर दैट एरो, और यहाँ पे दूसरा देखिए दूसरा एरो हमने लगाया। तो अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नियर टू द स्पेसिफिक साइट और द एट द स्पेसिफिक साइट, तो यहाँ पे इस साइट पे ये कट करते हैं। एक देखिए जी ग्वानिन को यहाँ से कट करते हैं। उसी प्रकार से ठीक अगले स्ट्रैंड जो नेक्स्ट स्ट्रैंड है वहाँ पर भी यहाँ पे इसको एरो जहाँ पे मैंने लगाया है वो वहाँ पे कट करते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, तो स्ट्रैंड जो आएगा वो आपका किस प्रकार से आएगा, स्ट्रैंड का फॉर्मेशन इस प्रकार से हो जाएगा, A T
TNC, और दूसरा कैसे आएगा देखिए, दूसरे में क्या होगा, C T T A और क्या हो जाएगा G। देखिए हमने यहाँ पे इसको डॉट दिखाते हैं, ये देखिए अब ये क्या हुआ, ये इस प्रकार का, तो स्टैगर्ड कट देखिए, एक इस बिंदु से और दूसरा देखिए ध्यान से समझे, ये इस बिंदु से, दोनों इस तरीके से इन्होंने हमने कट कर दिया। तो इस प्रकार का जो कट होता है वो स्टैगर्ड कट कहलाता है, और जो इंड होता है, जो इंड हमें प्राप्त होता है वो स्टिकी इंड या फिर कोहेसिव इंड के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपने ये पहले तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कट को देखा। अब दूसरा हम तरीका बताते हैं कि वो कैसे होता है। दूसरे तरीके में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं आफ्टर दैट टू द फाइंडिंग। अब दूसरे कट में कैसे होगा, यहाँ पे देखें, ये इस तरीके का आपका स्ट्रैंड है, और इस स्ट्रैंड के बाद यहाँ से हमें ब्लंट इंड या फिर फ्लस इंड कट, इसको फ्लस भी बोलते हैं, फ्लस इंड कट भी बोलते हैं, फ्लस इंड कट या ब्लंट इंड कट या स्टिकी इंड, कोहेसिव इंड, स्टैगर्ड इंड कट, इस तरीके से था पहला। अब यहाँ पे जबकि इस प्रकार के जो ब्लंट इंड या फ्लस इंड कट होता है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं एक विशेष पॉइंट पे दोनों डुप्लेक्स को समान तरीके से एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। एट द सेम पॉइंट विच आर कट टू द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू द डीएनए डुप्लेक्स आर द फाइंड टू द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस which have to the DNA molecule to the palindromic sequence, that is the same at the same point of the both strand is cut। तो दोनों क्लिप किया जाता है एक ही स्ट्रैंड पे। तो इस प्रकार का जो कट होता है वो फ्लस इंड कट या फिर इसको ब्लंट इंड कट भी बोलते हैं, ब्लंट तरीके से होते हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, यू आर जस्ट नो, जस्ट रिमाइंड टू इट अबाउट टू द scientist is always used to the staggered cut। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है अगर जेनेटिक रिकम्बिनेशन प्रक्रिया करना है तो वो स्टैगर्ड कट को लेके किया जाता है। मतलब हमेशा जो डीएनए डुप्लेक्स होता है उसको स्टैगर्ड कट से कट करके ही किया जाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, उसको कट करते हैं तभी जाके वो पूरा होता है। तो आप देखें तो मैंने कहा कि इस प्रकार से ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कट थे जिनको हमने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। तो ये एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण था। अब हम अगले जो है आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एक एंजाइम की तरफ जो कि आपको देखने को मिलेगा अगला एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम इज सिंथेसाइजिंग एंजाइम, sizing enzyme, which are also called DNA polymerase। DNA polymerase enzyme are always used for that to the formation of the copy of DNA on the DNA template, which means that to the grows up to the successive nucleotide sequence on the DNA template। इस प्रकार का जो अगला एंजाइम है जिसको सिंथेसाइजिंग एंजाइम, क्योंकि ये नए स्ट्रैंड्स का निर्माण करता है इसलिए जो है, या डीएनए का निर्माण करता है इसलिए इसको सिंथेसाइजिंग एंजाइम बोलते हैं। और ये इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए रिप्लिकेशन जो प्रोसेस या डुप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है जहाँ पे डीएनए का फॉर्मेशन है, डीएनए का निर्माण होता है वन स्ट्रैंड, जिसको यहाँ पे ये हम यहाँ पे बस शॉर्ट में बोलेंगे दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जो आप ज़्यादातर देखे होंगे डीएनए का, जिसके माध्यम से नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है जहाँ पे वन पेरेंट स्ट्रैंड होता है, वन जो है न्यू स्ट्रैंड्स होता है, और दोनों जब आपस में बनते हैं तो वहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट के माध्यम से लेडिंग एंड लॉगिंग स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे लागेज एंजाइम का आगे यूज होके इस प्रकार से वो बनता है। तो लेकिन यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज जो है डीएनए टेम्पलेट पे होके
वहाँ से जैसे हमें अगर यहाँ पे इस प्रकार से एक डायरेक्शन के बताएं तो ये अगर डीएनए स्ट्रैंड हो गया, डीएनए का स्ट्रैंड है और इस डीएनए स्ट्रैंड को यहाँ से क्या करना है, कट करना है। तो इसको यहाँ से मैंने बताया था ड्यू टू द यूज ऑफ द डीनेचुरेशन एंड द रीनेचुरेशन प्रोसेसेस विच मीन्स दैट टू द हीटिंग मैकेनिज्म विच आर, तो हीट किया जाता है और इसको यहाँ से अलग कर दिया जाता है, ठीक है, अलग कर दिया जाएगा। तो अलग करने के बाद इस स्ट्रैंड को अब यहाँ पे जबकि क्या बनाना है हमें, डीएनए पॉलीमरेज, फिर से डीएनए को मतलब उसकी कम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाने, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है, डीएनए को फॉर्मेशन करना है। तो वहाँ पे इस एंजाइम का यूज करके यहाँ पे फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो है फॉर्मेशन किया जाता है। तो एक एंजाइम ये भी है। अगले एंजाइम की तरफ चलते हैं जो कि और भी महत्वपूर्ण है। अगला एंजाइम है लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम, अब यहाँ पे हम आपको बोलें in the process of to the genetic engineering there are the two kinds of the enzyme is very important for that to the preceding to the processes. First is the restriction endonuclease and the second is the ligand, because the restriction endonuclease is the cleave to the DNA duplex at the any at the specific point, and after that to the cleaving of the small after the cleaving of the DNA strand into the small pieces, that's to the ligate along with the another type of this segment of the DNA and form to the recombinant DNA molecule, so that is the introduced into the any kind specific host for that to the formation of the copies and to the productions, so that this is the very important. तो ये भी बहुत important है, just like to the restriction endonuclease की तरह। क्यों, यहाँ पे क्या होगा, in the process of to the ligase, the DNA ligase are an enzyme that is join the ends of the two fragment of the DNA of, दो DNA के फ्रेगमेंट को यह क्या करता है, ज्वाइन करेगा, उस प्रकार का एंजाइम है। लेकिन कहाँ से ज्वाइन करेगा ये देखती हैं, कैटेलाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग ऑफ टू द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ द 5 प्राइम एंड। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर जो बॉन्ड्स होता है वो 5 प्राइम से, और दूसरा जो, या फिर ये कह सकते हैं 3 प्राइम से, और दूसरा जो कट होगा वो, चूंकि स्ट्रैंड आप जानते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम, ध्यान से समझिए, 5 प्राइम 3 प्राइम। अब यहां से जब कट होगा तो ये 5 हमेशा इस तरफ होगा, 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो जो ज्वाइनिंग होगी वो किस होगी, 5 तो ऑलरेडी इसके पास होगा ही होगा, अब ज्वाइन होगी तो ये 3 से होगा। तो ये देखें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ द 3 प्राइम, और किससे, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ 5 प्राइम OH ग्रुप। आपको पता होना चाहिए, यू आर जस्ट नो दैट वेरी वेल अबाउट टू द ड्यूरिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विद द phosphate group, pentose sugar and nitrogenous base. तो phosphate group which join with the pentose sugar with the loss of to the one water molecule. तो where are the OH group are the present? तो यहाँ पे तीसरे और पांचवें जो कार्बन्स होते हैं वहाँ पे ये ज्वाइन करता है। तो जो लाइगेज एंजाइम होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के माध्यम से एक वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए टू ज्वाइन विद द अनदर सेगमेंट ऑफ द डीएनए, दैट इज द OH ग्रुप, सो दैट टू द फॉर्म टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करता है और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम के रूप में ये रोल प्ले करता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट दोनों के दोनों में ये लाइगेट एंजाइम पाया जाता है, जहाँ पे ये महत्वपूर्ण वर्क करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है, इसका महत्वपूर्ण रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस में रोल है। तो सो दैट टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू द एंजाइमोलॉजी, सो दैट टू द ऑल द एंजाइम्स विच आर द पार्टिसिपेट इनटू दिस processes of to the genetic engineering, that is studied, and that's to the next chapter which are related to the genetic engineering process which are explained. So that's, thank you.